بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں صدر لیبارٹریز. صدر لیبارٹریز ہندوستان کی مشہور, معروف اور جدید یونانی کمپنیز میں سے ایک ہے. آپ تمام ناظرین کو, زائرین کو صدر لیبارٹریز کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نمائندے اجمیر میں مہتاب عالم موجود ہیں. جی مہتاب عالم, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت سے زائرین موجود ہیں, تو میں چاہوں گا کہ زائرین سے یہ پوچھیں کہ وہ لوگ جو مرادیں لے کر آئے ہیں, جو اپنی دل میں انہوں نے منتیں مانگ رکھی تھیں, کس کس کی مرادیں پوری ہوئی ہیں, منتیں پوری ہوئی ہیں؟ جی مہتاب عالم. راہل, ہم بتا دیں کہ جو ہے عرس خواجہ کا چھٹی شریف کا دن ہے, اور جو ہے کل کی رسم جو ہے مکمل ہو گئی ہے. آستان عالیہ پر نئے چادر جو ہے نئے غلاف پیش کر دیا گیا ہے. خدام خواجہ کی دستار بندی کر دی گئی ہے کیونکہ جمعہ کے دن ہے, اس لیے اس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو اوقات تھے اس میں تبدیلی کی گئی ہے. اور پھر جو ہے آستان عالیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جنتی دروازہ میں جو ہے لوگ منتوں کے دھاگے باندھتے ہیں, مرادیں وہاں پہ پوری ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر, یہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے آئے ہیں, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں, اور جب خواجہ نے انہیں بلایا تو ان سے جانتے ہیں. آپ کا نام؟ عین البشر. بشر صاحب, جو ہے آپ اتنی دور سے جو ہے جھارکھنڈ سے سفر کر کے آئے, تو کیا خاص مرادیں لے, کیا دعائیں لے؟ ہم دعا جو کہ قبول ہو گیا میرا. جی, کیا دعائیں مانگی؟ ہم کو ہارٹ کا بیماری تھا, وہ ہمارا بالکل ٹھیک ہو گیا. ہارٹ کی بیماری تھی, بالکل ٹھیک ہو گئی. جی, اور میں جو بھی دعا بال بچہ کے لیے, ہمارے لڑکی کے لیے, وہ بھی خواجہ نے ہم کو دیا. ہم کو کافی وشواس ہے, اور یہاں کا جو ویوستھاپک ہے ان کو بھی میں وشواس ہوں. بس یہی. آپ کی دعائیں قبول ہوئی. آپ کا نام؟ محمد معصوق علی. جی, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جھارکھنڈ سے ہیں, چترا جھارکھنڈ سے. جھارکھنڈ سے آپ تشریف لائے ہیں, کیا دعائیں لے کر کھاتے ہیں؟ دعا ہمیں نا 11 سال سے ہم آ رہے ہیں, جو منت یہ مانگتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. اور ہم زیارت بھی کراتے ہیں, بس لے کے آتے ہیں. بس لے کر آتے ہیں. آپ کا نام؟ ظہیر علی. کیا خاص دعا مانگنے کے لیے آئے تھے؟ ہم نے بہت پریشان ہیں, مانگتا ہوں دعا پورا ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کے, اس میں ہمارا سب پورا ہوتا ہے. جو مانگتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. آپ کا نام؟ جی قاضی محمود الحسن. جی محمود صاحب, جو ہے کیا خاص دعا لے کر آئے ہیں؟ بس ہر سال بس لے کے آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں, غریب نواز پورا کرتے ہیں, ہم لوگوں کی زیارت کرواتے ہیں ہر زائرینوں کو. جی, بار تو کورونا تھا, کس طرح سے ارینجمنٹ کیا؟ جی ہم لوگ جان پہ جوخم میں ڈال کے لے کے آئے ہیں. اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا آگے. جو بھی ہوگا خواجہ کا کرم ہوگا تو بات بنے گی, یقینی طور پر جو ہے خواجہ کا کرم ہوگا تو بات بنے گی. جی, آپ کا نام؟ حاجی معین الدین. جی, مونی صاحب کہاں تشریف لائے ہیں؟ ہم مہاراشٹر املنیر. مہاراشٹر املنیر سے تشریف لائے. ہر سال آپ لوگ خدمت کے لیے آتے ہیں, خدمت سے کیا ملتا ہے؟ بہت خوشی ملتی ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک جگہ خواجہ صاحب کے روزے پہ آتی ہے اور اپنی مراد پوری کر کے جاتے ہیں. اس بار جب خدمت کرنے کے لیے آئے آپ, ڈر نہیں لگا آپ کو؟ بالکل نہیں, ہم تو خواجہ صاحب کا کرم ہے, ہمیں کس بات کا ڈر ہے. خواجہ کا کرم ہے تو کس بات کا ڈر ہوگا. یا کچھ اور لوگ جو ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں, جو ہے یہ جہاں پہ جو عقیدت مند راہل آئے ہیں, سب کا اپنا ماننا ہے, کیونکہ وہ یہاں پر تو اس لیے آتے ہیں کہ خواجہ کے کرم سے تم کو شفا ملے گا. آپ کا نام؟ محمد ظفر. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یو پی بلرام بلرام پور سے آئے ہیں. تو آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے, کورونا میں آئے, جو ہے کیا خاص مراد ہے؟ ہماری مراد زمانے سے آتے ہیں, لگ بھگ 41 سال سے میں آ رہا ہوں, اور میں خواجہ کے مہمانوں کو لاتا ہوں اپنی گاڑی سے. خواجہ کے مہمانوں کو اپنی گاڑی سے لے آتے ہیں, تکلیف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ خواجہ خوش ہو جائے, بس خواجہ کی نظر کرم ہو جائے. جی, آپ کا نام؟ جی, میرا نام محمد ارشاد ہے, میں بریلی شریف تشریف لایا ہوں, اور خواجہ غریب نواز کے آستانے میں ہر سال آیا کرتا ہوں. جی, بڑی فیض ملتی ہے مجھے. میں دیکھتا ہوں کہ یہاں یتیموں کو, غریبوں کو, اور جو مطلب پریشان لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, بڑی شفا ملتی ہے ماشاء اللہ. اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے کمیٹی اور پرشاسن اور شاسن کا. بڑا یہاں کے مہمانوں کو دھیان رکھتے ہیں, بڑے اچھی طرح سے پانی, سیوا, کھانا پینا, راستہ, سفر, بسوں کا انتظام کرتے ہیں. میں بہت بڑا شکر گزار ہوں یہاں کے مہمانوں کا, بڑا دھیان رکھتی ہے یہاں کی کمیٹی, شاسن, پرشاسن ماشاء اللہ. تمام لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں. جب راستے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچتے ہیں اور پھر گنبد کے مبارک کے دیدار ہوتے ہیں, تو تمام روح کی بے چینیاں کافور ہو جاتی ہیں. جی, آپ کا نام؟ عشرت الوی ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بریلی شریف یہاں ہے. کیا خاص دعا جو ہے یہاں پہ مانگنے آئے ہیں؟ میں تو پہلی بار ہی آیا صاحب, ویسے ارادے تو میرے بہت ہوئے, پہلے آنے کی سوچی تو نہیں آ پایا. آپ ہم نے بلایا تو ضرور آیا میں. اب
इरादे कई बार बने हाँ इरादे कई बार बने, टूट जाते हैं, ख्वाजा गरीब मुही जाते हैं, ख्वाजा बुलाते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जो है आपका नाम? रफी अहमद। कहाँ से तशरीफ लाए? झारखंड। झारखंड से बहुत सारे लोग आए। झारखंड चाहते ही ख्वाजा गरीब नवाज को तो। अच्छा। हाँ, अब ख्वाजा गरीब नवाज क्या का कमी देते हैं हम लोग को। कोई कोरोना कोरोना कहते हैं, कोरोना कुछ नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज क्या कुछ नहीं है। ख्वाजा का करम जिस पर हो गया सब कुछ है। कुछ नहीं है। कोई कितना सवाल पूरा किया कि नहीं जाना, लेकिन बोले कि जाना, उन पर मर मिट जाना है। हाँ। तो कितने सालों से आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा 27 साल से। 27 साल से। हाँ। तो पिछले साल और इस साल में कुछ फर्क नजर आया? पिछले साल में तो बहुत थे, अबर तो बहुत मैंने फर्क पड़ा। बहुत मैंने समझ जाइए 2 पैसा जायरीन आया ना तो नहीं आया। मतलब 2% जायरीन आए, बाकी लोग जो है कोरोना की वजह ख्वाजा गरीब नवाज ताकत दिए, जिसमें खुद वहाँ पहुँचा। जिसमें ख्वाजा ने ताकत दी वो बुलाए, या जिसको ख्वाजा से सच्चा इश्क था वो आ गया। जी आपका नाम? हामिद अली। हामिद साहब कहाँ से लाए? वहाँ बलरामपुर से। बलरामपुर यूपी से आए हैं। हाँ हाँ। जी कितने सालों से आ रहे हैं? मैं अभी पहली बार आया हूँ। अच्छा, क्या खास था कि आप पहली बार? बस यही तंदुरुस्ती रखें बस। अच्छा। हाँ तंदुरुस्ती जो है। बस। आपका नाम? महबूब अली। जी महबूब भाई कहाँ तशरीफ लाए? लखनऊ से। लखनऊ से तशरीफ लाए। वहाँ तो मखदूम जो है बहुत बड़े बहुत सारे जो है बड़े बड़े औलिया वहाँ पे मौजूद हैं। उन तमाम लोगों से होते हुए आप यहाँ पर आ गए? हाँ आ गए साहब। क्या कुछ खास दुआ है? नहीं, हाँ खास दुआ है, ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ है। बुलाए हैं 17 साल से आ रहे हैं बराबर। 17 साल से आ रहे हैं? 17 साल से बराबर बुला रहे वहाँ हैं। पे शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह भी तो है। हाँ जी। तो वहाँ पर आप नहीं गए? हाँ गए थे। हाँ गए थे। लेकिन यहाँ की बात कुछ और है। बोलिए। पटना बिहार से। पटना बिहार से है माशाल्लाह जो है। तो आप वहाँ से तशरीफ लाए हैं, कुछ रास्ते में क्या क्या तकलीफें गुजरी होंगी? कुछ नहीं। यहाँ पे जब दीदार हुआ ख्वाजा के आस्थाने का, बहुत मोहल्ला का टोला का बहुत बोला, बहुत कष्ट होगा इंसान, मजा, फिर भी हम लोग आए। अच्छा, सबने मना किया तभी आ गए? तभी आ गए। जब यहाँ पे दीदार हुआ आस्थाने का फिर कैसा? बहुत सुकून, बहुत अच्छी। जी हाँ जी, आपका नाम? हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं तौफीक बरेली से हूँ, जिला बरेली बरेली से आए हैं। जी। आला हजरत की आए हैं। जी। क्या खास यहाँ पे दुआएं? अरे साहब यहाँ की तो बातें निराली है। 21 साल है मुझे भी होगी माशाल्लाह, हर साल छठी में आता हूँ। हाँ, और यही बात भाई बता रहे हैं, यही था कि सब लोग यही कह रहे थे कि मतलब लाओ बस मत ले जाओ ना, जिसमें आज चौथी बार जो है बस लाते हुए हो गया। यकीन आपने देखा कि यहाँ पे तमाम लोग जो आए हैं आशिकाने ख्वाजा हैं। जुमे का दिन है, नमाज का वक्त हो गया है, अजान हो चुकी है। अब लोग जो है नमाज के लिए जा रहे हैं ताकि अल्लाह के हुजूर जो है हाजिर होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें कि अल्लाह ने उन्हें मौका अनायत फरमाया कि वो ख्वाजा के आशिक बनकर यहाँ पर आस्ताने आला की ज़ियारत के। और फिर अल्लाह के जो महबूब बंदे जो होते हैं वो पैगाम वही है जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भेजा था। क्योंकि अताए रसूल हिंदल वली को जो है वहाँ से हुक्म मिला था कि आप हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर में जाइए। तो अजमेर में आके ख्वाजा ने जो है उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को जो आम किया। तो आशिकाने ख्वाजा ये चाहते हैं कि तालीम के आम करने वाले हम बन जाएं ताकि दुनिया जो है अमन का गहवारा बन सके। राइट जी मेहताब आलम, आप तो वहाँ पे कई साल से जा रहे हैं और आपने उर्स को बहुत ही करीब से कवर भी किया है, लोगों से मिले भी हैं। पहले उर्स के मुकाबले में, गुज़िश्ता उर्स के जो मुकाबले में और इस बार जो उर्स हो रहा है, आपने क्या फ़र्क पाया है? देखिए राइल एक बता दें कि इंतज़ामिया के नुक्ते नज़र से जो हुकूमत ने जो ज़ाब्ता तय किया है उसको देखते हुए अगर हम देखते हैं तो कुछ तादाद में कमी ज़रूर है। लेकिन अगर जो है उस तमाम पहलुओं पर नज़र डालें तो आशिकाने ख्वाजा के जज्बे में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो है इस कोरोना के कहर में जो है लोगों की माली हालत भी ख़राब हुई है, लोगों में किसी तरह को कुछ खौफ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब ख्वाजा से इश्क है तो जो कुछ भी होगा रास्ते में देखेंगे, और ख्वाजा के रास्ते में चलते हुए अगर हमारी जान भी चली जाती है तो हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो हमें देख रहे हैं कि जो सच्चे और अच्छे जो ख्वाजा के आशिक हैं उन्हें तो किसी भी तरीके से ख्वाजा के आस्थाने का दीदार करना था। हमने ये भी देखा कि लोग तड़पते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आ रहे हैं, और जब वो निज़ाम दरवाजे के पास पहुंचते हैं और निज़ाम दरवाजे से दाखिल होकर बुलंद दरवाजे से अंदर जाते हैं और उनकी जो नज़र जो है गुम्बद पर पड़ती है तो यकीन जानिए कि उनकी रूह की बेचैनियां जो है वो काफूर हो जाती हैं। वो तमाम लोग यही चाहते हैं कि हम ख्वाजा के सच्चे आशिक बन जाए, और सच्चे आशिक
बनने के लिए ज़रूरी है कि वो ख्वाजा की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बात करामात की होती है, लेकिन करामात के ज़हूर से जो मामला हल नहीं होता, बल्कि आपको ख्वाजा की तालीमात पर अमल करना होगा। जब ख्वाजा की तालीमात की बात करेंगे तो ख्वाजा ने वो दर्स जो दिया है हिंदुस्तान को, दुनिया के लोगों को, वो जो सुलह कुल का एक दर्स है, एक जहती का दर्स है, अमन का दर्स है, दिलों को जोड़ने का दर्स है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा अमीर नवाज नहीं है। क्योंकि अमीरों के यहाँ तो तफरीक होती है, अमीरों के यहाँ अमीरों को ही बैठाया जाता है, लेकिन गरीबों के यहाँ तफरीक खत्म हो जाती है। गरीबों के यहाँ जो है एक दूसरे की गमगुसारी का मामला होता है। तो ख्वाजा ने दुनिया के लोगों को बताया कि गरीबों का गम किस तरह से दूर किया जाए, गरीबों की तकलीफों को किस तरह से दूर किया जाए। ख्वाजा काशिक तो ये कहता है कि अपना दुख मुझे दे दो। ख्वाजा काशिक ये नहीं कहता जब किसी को दुख में देखता है कि तुम मुझसे दूर हो जा, बल्कि ख्वाजा काशिक ये कहता है कि अपने दुख मुझे दे दो, तुम अपने दुख मुझे बांटने वाला बना लो। तो यही वजह है कि हमें देखते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों से जहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, वहीं पे लोग इस लिए भी आते हैं कि हम आशिकाने ख्वाजा की खिदमत कर सकें। वो इसलिए भी आते हैं ताकि दरगाह कमेटी का जो नज़्म है उसमें खिदमत के हिस्से में हिस्सा बन जाए। वो इसलिए भी आते हैं कि ख्वाजा की तालीमात को जो है दूर दूर तक पहुँचाने वाले बन जाए। यहाँ पर ये डोम जो बना हुआ है, मैं जगदीश से कहूँगा उसको दिखाएं कि यहाँ पर जो है लोग जो है आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ख्वाजा की तालीम को जो है यहाँ पर दर्स दिया जा रहा है, तो नमाज से पहले भी तकरीर और नमाज के बाद भी तकरीर, ताकि इसलिए जो हो रही है ताकि लोगों को बताया जा सके कि ख्वाजा की तालीम क्या है। ख्वाजा ने मदीने से आने के बाद यहाँ पर पैगाम कौन सा दिया है जिसकी हिंदुस्तान को, दुनिया को, आलम इंसानियत को ज़रूरत है। और जो यकीन जानी जब हम तमाम लोग जो है उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बन जाएंगे, और उसमें रसूल पे पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हम ख्वाजा की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं। जब हम ख्वाजा की तालीमात पर अमल करेंगे तो यकीन जानिए कि हम उसमें रसूल तक पहुँचेंगे। जब हम उसमें रसूल तक पहुँचेंगे तो अल्लाह का कुर्ब भी हमें हासिल होगा। राइल जी, मैं दावल एक सवाल और करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से लोग उतनी तादाद में नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर काफ़ी लोग आए हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि कौन से इलाके से, कौन से खत्ते से या किस सूबे से इस बार लोग ज़्यादा आए हैं? जी मेहता वाला। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ अभी जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि 18 तारीख की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त तक जो है यहाँ पे कुल 60 के करीब बसें थी। लेकिन जब ये 19 तारीख है, जो हम लोग 5वीं की शब और जो 6ठी की सुबह तक जो है इन बसों की तादाद 150 के करीब हो गए। यहाँ पर बिहार से भी बड़ी तादाद में लोग हैं, झारखंड से भी हैं, बंगाल से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो इलाका है, चाहे हम गोंडा की बात करें, बस्ती की बात करें, बलरामपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, जौनपुर की, इलाहाबाद की बात करते हैं, यहाँ से बड़ी तादाद में आशिकाने ख्वाजा हैं। क्योंकि तमाम लोगों का मकसद यही है कि हम ख्वाजा के इश्क में सरशार हो जाएं। ख्वाजा ने जिस तरह से गमगुसारी की, ख्वाजा ने दुनिया को जिस तरह से मोहब्बत का पैगाम दिया, उस पैगाम के मानने वाले भी बन जाए और उस पैगाम को पहुँचाने वाले भी बन जाए। तमाम लोग यही चाहते हैं कि ख्वाजा का जो सच्चा आशिक है, वो जो तमाम तालीमात जो उनको यहाँ से मिल रही है, वो खुद भी तालीम को हासिल करें और दूसरों तक पहुँचाने वाले भी बन जाए। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सदाब खान। कहाँ से आए? यूपी लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी से जी। क्या खास दुआ लेके आए? मैं यही दुआ लेके आया हूँ कि जो परेशान हाल है, जो मजबूर है, जो नहीं है ख्वाजा के दर पर आ जाए, वो भी आए अगले साल। और जिसकी परेशानी कमजोर है, जिसकी बेटियां की शादियाँ नहीं, उनकी शादियाँ हो जाए और परेशान हाल उनकी परेशानी दूर हो जाए। जिसने दुआओं के लिखा उनकी दुआ ख्वाजा की नमाज सुन ले। सभी लोगों की दुआएं मुरादें पूरी हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम इसाक अली है, यूपी के बहराइच से आए हैं। गांव का नाम आसमानपुर है। हमारे ख्वाजा पिया से दिल लगाव है, उनकी चाहत में आते हैं, दिल लगा हुआ उनसे, हमेशा आते रहेंगे और आते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? अभी तो मेरे को 10 साल हो गए आते आते, और जब तक जिंदगी रहेगी मैं आता ही रहूंगा। क्या दुआएं पूरी हुई, क्या मुरादें पूरी हुई? जो उनसे मांगेंगे वो पूरी हो जाती है, जो मांगा वो पूरी हो गई, वो पूरी हो जाती है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ नहीं जाता जी आइए जी। लोग जो है खाली हाथ आते हैं और झोलियाँ भर के जाते हैं। रफी अहमद उर्फ लल्लन, नवाबगंज जिला बहराइच। नवाबगंज जिला बहराइच। वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जो वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ गए। बहराइच जिला, ये मोहब्बत है, दीवाने हैं ख्वाजा सरकार का। जी क्या खास दुआ है यहाँ? तो बस दुआओं की तमन्ना है। जी जी। देख रहे हैं कि राहिल तमाम लोग जो है आशिकाने ख्वाजा आए हुए हैं। नमाज का वक्त हो गया, लोग जाना चाहते हैं और हम भी चाहेंगे कि लोग जो है अल्लाह के हुजूर सजदा करें। देखो कि अल्लाह अगर राजी होगा तो दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में होगी। ख्वाजा ने भी यही सिखाया कि तुम जो है तमाम चीज़ों का महवर, अपनी ज़ात का महवर जो है सिर्फ अल्लाह की ज़ात को बना लो। अल्लाह की ज़ात को जब आप महवर बना लेंगे, अल्लाह का जो पैगाम जब उसके मानने वाले बन जाएंगे, तो यकीनन आपकी दुनिया जो है खूबसूरत तो हो ही जाएगी। और फिर जिस माहौल में, जिस माशरे में आप रहेंगे, वहाँ पर आस पास भी जो है खुशहाली सरशारी होगी।
जी बेशक। मेहताब आलम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ कॉलर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उज्जैन एमपी का बोल रहा हूँ साहब। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज से ये हम देख रहे हैं आपका जो चैनल पे बता रहा हो, पूरी रात से देख रहे हैं। घर का तो आप बता ही नहीं रहा हो, उसमें वहाँ क्या हो रहा है, अभी क्या नहीं हो रहा है, आप कुछ भी नहीं बता रहा हो। देखिए, जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ पे वहाँ के हम मनाजिर दिखा रहे हैं। कल रात से दिखा रहे हैं। गालिबन आप नहीं देख पाए, कोशिश हम करेंगे कि फिर भी हम आपको वहाँ के मनाजिर दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बरेली से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी मेरी मम्मी के लिए आप दुआ करवा दीजिए वहाँ पर। मम्मी की तबीयत खराब है? जी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनका नाम सीमा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बरेली शरीफ से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी कोलकाता से हम बात कर रहे हैं। जी, मेरा नाम नसीमा बानो है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे भाई का जॉब नहीं है, उसके लिए दुआ कीजिए। हम लोग सभी घर वालों के सेहत के लिए, तरक्की के लिए और ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हम लोग आने चाहते हैं। हमारे घर में कुछ मसाइल है, उनको हल कर दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कोलकाता से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आइए अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ। जी, मेरा नाम शाहिदा है। जी, बस दुआ कीजिए कि हमारी तबीयत वगैरह सब अच्छी रहे, मेरी बच्ची को कामयाबी मिले, इसके लिए दुआ करिए ख्वाजा साहब के दरबार में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बरेली से बोल रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मैं आपका उर्दू चैनल देख रहा हूँ, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ख्वाजा साहब का कुल शरीफ देख रहा हूँ यहाँ बैठ के। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल का अल्लाह ताला बड़ा करम करे आप पर कि आप इसी तरह से सबको दिखाते रहे और अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज की तमाम चीज़ों को तमाम दुनिया में फैलाए और ख्वाजा गरीब नवाज की रहमतें सब पर नाज़िल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया बरेली से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे कैंसर है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे को घर नहीं है, मैं बेघर हूँ इस वक्त। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, कर्नाटका मैसूर से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारे दादा साहब की तबीयत बराबर नहीं, उनके लिए दुआ करने गए। दादा साहब की? हाँ, अब्दुल करीम नाम उनका। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैसूर से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर ये ख्वाजा अजमेर वाले बात कर रहे हैं साहब? जी 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं साहब। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आवाज कम कर। ठीक है साहब, बात कर रहे हैं भी। अच्छा जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ देखिए साहब, हमारे घर में खैर बरकत के लिए, हमारे बच्चों की कामयाबी के लिए जरा दुआ करा दीजिए साहब। हम हमारे ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम करीमनगर से बात कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम हमारे घर वालों के लिए सबके लिए दुआ करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए करीमनगर से। नाज़रीन हमारे साथ मेहताब आलम एक बार फिर जुड़ गए हैं। अब आपको सीधे अजमेर लिए चलते हैं। जी मेहताब आलम।
आपने वहाँ के इंतज़ामिया से बात करी, पहले के मुकाबले में इस बार इंतज़ामात कैसे हैं? वहाँ पे काफ़ी लोगों से आपकी बात हुई है, लोगों ने इंतज़ामात की तारीफ़ की है। आपने जहाँ तक इंतज़ामात देखे हैं, इंतज़ामात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के इंतज़ामात हैं पहले साल के मुकाबले में इस साल? राहिल, पहले हम जो है जगदीश से कहेंगे कि रूह परवर मंदिर को दिखाएं कि नमाज का वक्त जो है जी बेशक, और किस तरह से आशिकाने ख्वाजा और जो है बंदे मोमिन जो है तमाम लोग जो है नमाज के लिए जो हाजिर होगा। अब आप देखिए रूह परवर मंदिर जो है इसमें किस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं और जो है अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। अब आप देखिए कितना लंबा मंदिर है कि जो है लोग बड़ी कम तादाद में आए हैं, उसके बावजूद भी आप हद नज़र तक देखिए तो आपको जो है सिर्फ लोगों की टोपियाँ और लोग सजदा करते हुए नजर आएंगे। ये तमाम लोग अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं और आशिक ख्वाजा हैं। तो ये चाहते हैं कि अल्लाह के जो है नेक बंदे में हम शामिल हो जाएं। आशिक ख्वाजा की जब हम बात करते हैं तो आशिक ख्वाजा हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तालीम दी है उस तालीम के मानने वाले बन जाए, क्योंकि हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म जो हुआ था मदीना शरीफ से हुआ था, और जब मदीना शरीफ से वो अजमेर के लिए रवाना हुए तो उन्होंने रास्ते में 28 मकाम पर क़याम किया। उन तमाम मकामात को अगर हम गूगल मैप से देखें और उनको मिलाएं तो वो शक्ल जो बनती है वो मोहम्मद की बनती है। तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये तमाम लोग जो है यही चाहते हैं कि दुनिया की जो है चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के मानने वाले बन जाए। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो यकीनी तौर पर दुनिया और आखिरत उसके कदमों में होगी। जिस तरह से आपने राहिल बात की कि इंतज़ामिया ने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने किस तरह का इंतज़ाम किया है, तो मैं आपको बताऊं कि स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से लेकर दरगाह आस्ताने आलिया तक और फिर जो है मेहमान खाना जो है उस मेहमान खाने से लेकर आस्ताने की ज़ियारत करने के लिए हर कदम पर इंतज़ाम किया गया है। जहाँ पर 5000 सिक्योरिटी के एहलकार हैं, वहीं पर हुकूमत की जानिब से जो बसें भी लगाई गई रोडवेज की। इसके साथ साथ जो है आशिकाने ख्वाजा ने खुद अपनी गाड़ियों का इंतजाम किया है। मुल्क के जो तमाम शहरों से लोग बसों के जरिए अब तक 150 बसों से लोग आ चुके हैं, ट्रेनों के जरिए भी आ रहे हैं। हालांकि कोविड की पाबंदी है, तमाम चीज़ों के एहतियात है, उसके बावजूद भी आशिकाने ख्वाजा खिंचे हुए चले आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो हमारी जो बात है उनका कहना है कि अल्लाह ने जब जिंदगी दी है तो जिंदगी में मौत एक ही बार आती है। अगर ख्वाजा के इश्क में वहाँ पे जाने से भी जब निकलती है, अल्लाह का जिक्र और अज़कार करने में जिंदगी वहीं पर रास्ते में खत्म हो जाती है, जिसका कोई हद नहीं। उनका ये मानना है कि जब ख्वाजा का करम होगा तो कोरोना का खात्मा भी होगा। कोरोना का खात्मा ख्वाजा का करम मानते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना अब आखिरी पायदान पर है। आखिरी पायदान पर इसलिए है कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने जो है इंतजामिया की जो अहकाम थे, हुकूमत के जो अहकाम थे, हुकूमत की जो गाइडलाइन थी उस पर अमल किया। और फिर दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने, माहिरीन ने किस तरह से काम किया कि दवा की ईजाद की। और दुनिया के 126 ममालिक अब जो है इस वक्त कतार में खड़े हैं कि हिंदुस्तान से उन्हें दवा मिल जाए, हिंदुस्तान से उन्हें वैक्सीन मिल जाए, ताकि उनके यहाँ भी जो है कोरोना के खात्मा की तदबीरें हो सके। इस तरह से आप देखें कि रूह परवर मंदिर में जो है तमाम लोग जो अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह को याद इसलिए कर रहे हैं कि ख्वाजा ने 850 साल पहले अजमेर की धरती से जो पैगाम दिया था वो पैगाम यही था कि अल्लाह के जब हम हिंदुस्तान करते हैं वाले बन जाए। और वो पैगाम जो मदीना से लेकर ख्वाजा चले थे हिंदुस्तान की तरफ, उस पैगाम के मानने वाले बन जाए। और तमाम लोगों की कोशिश ख्वाहिश वही है कि हम ख्वाजा के आशिक हैं तो ख्वाजा के वो आशिक बने जिस तरह का ख्वाजा खुद चाहते थे। क्योंकि ख्वाजा चाहते थे कि हम गमगुसार बन जाए, हम दूसरों की एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाले बन जाए, हम एक दूसरे की मुसीबत में काम आने वाले बन जाए, हम एक दूसरे को राहत पहुंचाने वाले बन जाए, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाए। क्योंकि ख्वाजा जो पैगाम लेकर आए मदीने से लेकर पैगाम आए। और मदीने की जब हम बात करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किधर से जो पैगाम आया था वो पैगाम वही था कि तब कि मोहम्मद, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो फिर जो है अगर मैं दूसरे शायर की बात करूँ तो कहता है कि तुम अपने दिल में मदीने की आबरू रखना, ये उनका काम है, जज्बे की आबरू रखना। तो जो वो लोग जो मदीने को अपने हिद्दतों का महवर बनाते हैं तो ख्वाजा तो हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, उनको पैगाम तो वहीं से मिला था। वो पैगाम तो यहाँ से लेकर आए और ख्वाजा ने जो हिंदुस्तान की सरजमीन से जो
पैगाम दिया था, वहदतुल वजूद का जो पैगाम दिया था, सुन्नतुल कुल का जो पैगाम दिया था, ये उसी का तो फैज़ान है कि आज इतनी बड़ी तादाद में ख्वाजा के आशिक आपको नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख्वाजा ने जो है इस्लाम की जो सही तालीम थी उस तालीम को आम किया। अगर ख्वाजा ना आए होते तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग जो है उनकी हालत क्या होती। ख्वाजा आए इसलिए हमें इतना बड़ा मरकज़ दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा महवर दिखाई दे रहा है, इतना तमाम लोग जो है ख्वाजा के मानने वाले जो है इस्लाम की सच्ची तालीम पर अमल करते हुए जो है यहाँ पर अल्लाह के हुजूर सजदा करने वाले बन गए, अल्लाह की वहदानियत को कबूल करने वाले बन गए, अल्लाह की तालीम को मानने वाले बन गए। ये ख्वाजा के ही पैगाम है। और ये लोग ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो हिंदुस्तान के दुनिया जिन जिन गोशों से लोग आए हैं वहाँ पर जाकर जो है ख्वाजा की तालीम, अल्लाह की पैगाम की तालीम को आम करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जरिया अल्लाह ने दुनिया को भेजा है। कुरान की तालीमात को मानने वाले बन जाए। जब कुरान की जब तालीम बने करेंगे तो ऊंच नीच का फ़र्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे ही तो तालीम दी कि तुम में कोई भी जो है किसी से अफजल नहीं है। अगर कोई अफजल है तो अपने तकवे की बुनियाद पर। तो ख्वाजा ने सिखाया था अपने मुरीदजन को कि तुम तकवे वाले बनो, तुम जो है दुनियादारी को छोड़ दो। क्योंकि आप देखिए कि राहिल कितनी अजीब बात है, वो तमाम लोग जो दुनियादारी में जिन्होंने सब कुछ अपने को ख़त्म किया, दुनिया उनसे दूर हो गई। आज बादशाहों के आस्थाने जो मज़ारात पर उनके दरबार में कोई नहीं जाता जो है कि हम उनकी ज़ियारत कर लें, लेकिन वो तो औलिया अल्लाह जो सूफिया कराम है, सूफिया उज़्ज़ाम है, उन्होंने जो है दुनिया को ठोकरों में रखा, अल्लाह ने दुनिया को उनकी ठोकरों में डाल दिया। यहाँ पे जब हम दुनिया की उसकी बात करते हैं तो आपको यकीन होगा, क्योंकि ख्वाजा ने हमें यही बताया कि तुम अपने आप को अल्लाह के लिए इस तरह से जो अपना अल्लाह की राह में लगा दो कि दुनिया की जो है तमाम चीज़ें तुम्हारे सामने हिट हो जाए। जब हम ख्वाजा की बात करते हैं तो ख्वाजा के दर्स का यही है कि हम तमाम चीज़ों को इस तरह से माने। मैं राहिल में हमारे साथ कुछ जिम्मेदार भी मौजूद है, आइए मैं उसको जी किस तरह का इंतजाम किया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया और जो ज़ायरीन आ रहे हैं बड़े सुकून के साथ ये आर्जी तौर पे जो मस्जिद बनाई गई थी इसमें सुकून के साथ नमाज पढ़े हैं। ख़वातीन का भी इंतज़ाम बहुत अच्छे अंदाज से किया है। दरगाह कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे पैमाने पर इंतज़ाम किया है। आप देख रहे हैं कैमरे के ज़रिए मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर बड़े सुकून और इत्मीनान से ज़ायरीन नमाज पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ख़वातीन का भी सामने इंतज़ाम किया गया है और थोड़ा आप आगे बढ़कर देखेंगे कि लोग उस तरफ भी यानी पूरा पिंडाल भरा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे लोगों का ये ख्याल था कि यहाँ पर तादाद बहुत कम आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि तकरीबन यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि 50% आवाम यहाँ पर नज़र आ रही है। इतना कोरोना होने के बावजूद भी सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत ने उन्हें यहाँ पर खींच लाई है। आप कैमरे के ज़रिए देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा कायड़ के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल कादी साहब का भी खिताब हो रहा है। इस पर हो रहा है कि लोगों में किस तरह से मोहब्बत जात पात को सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन से मिटाया है। सरकार गरीब नवाज ने हर एक से मोहब्बत की है और जो उनकी बारगाह में जो भी हाजिर होता था वो उनसे इतना मुस्तासिर होता था कि उनसे मोहब्बत और उनका मुरीद बनता हुआ नजर आता था। जो उनसे मिलता था सिर्फ उन्हीं को हो जाता था। जी जी, जो उनसे मिलता था उन्हीं का हो जाता था। और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत ने इन तमाम लोगों को आने पर यहाँ मजबूर कर दिया है। और आप जानते हैं कि इस वक्त ऐसे हालात होने के बावजूद भी इतनी तादाद में आना ये सबसे बड़ी बात है और मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी करामत सरकार ख्वाजा के इश्क की दलील है। ये ख्वाजा के इश्क की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके इश्क में हर एक इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों की तादाद नजर आ रही है। आप जो है महाराष्ट्र के अमलनेर से यहाँ तक का सफर और कोरोना के उसमें जब लोग खौफजदा हैं अपने घरों से निकल नहीं रहे, खिदमत के लिए निकल पड़े। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शहर अमलनेर जलगांव जिला से हैं और कोरोना के बावजूद भी लोगों की खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि लोगों को हिदायत दी जाए, लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि सोशल डिस्टेंस हो और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। ये सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत है कि उनकी मोहब्बत ने हमें यहाँ खींच लाया है। सरकार काम ले रहे हैं। जी जी हमसे सरकार काम ले रही है। जी राहिल जी मेहताब आलम, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसा कि अभी आपने भी कहा और ख्वाजा गरीब नवाज की जो तालीमात हैं उनमें से उन्होंने ये भी कहा था कि जो
चरिंद परिंद शजर बशर, इंसान के ऊपर अगर इंसान से हमदर्दी ना करे, चरिंद परिंद से हमदर्दी ना करे, वो बेसिकली हकीकत में अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं कर सकता है। और जो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वो इंसानों पर भी रहम करते हैं, चरिंद परिंद का भी ख्याल रखते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेहताब। जी मेहताब आलम। ग़ालिबन हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया। मैं फिर कोशिश करूँगा कि मेहताब आलम एक बार जुड़ जाएं, लेकिन उसी बीच हम जो है कुछ कॉलर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनके क्या क्या सवालात हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? कोई सवाल आपका? हमारे यहाँ से दुआ करिए, हमारी बड़ी बेटी के लिए औलाद नहीं है, ज़रा दुआ कीजिए उनके लिए। जी हाँ, अगर हमारे घर में खैर बरकत के लिए दुआ कीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पटना से बोल रहा हूँ, किशन बोल रहा हूँ। और जी मेरी छोटी बेटी है, उसके शादी के लिए नहीं हो रही है, आप थोड़ा दुआ कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी आपको। ठीक, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए पटना से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी मैं जो है तीन साल से जो है रोजगारी कहीं नहीं मिल रही, मैं तो थोड़ा परेशान हाल हूँ। सर मेरे दुआ कीजिए सर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा क्या कहना चाहेंगे आप? से बात कर रही हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे घर में खैर बरकत की आप दुआ कीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट भीतर से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनको शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बिदर से। नाज़रीन एक बार फिर हम आपको अजमेर लिए चलते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम मौजूद हैं। एक बार उनसे हमारा राब्ता कायम हो गया है। जी मेहताब आलम, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ की तालीमात का जिक्र किया, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा था कि जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है वो इंसानों से मोहब्बत करेगा, जानवरों से मोहब्बत करेगा, परिंद से मोहब्बत करेगा, और जो चरिंद परिंद शजर बशर से अगर मोहब्बत ना करे तो हकीकी मायने में वो अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रोशनी डालना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जी मेहताब आलम। देखिए राहिल, हम बता दें कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। जी इंसान अशरफ है तमाम चीज़ों में, और जाहिर सी बात अल्लाह ने जिसको अशरफ बनाया है, और वो इंसान जो है जिनको जो सैयदुल अंबिया के मानने वाले हैं, अब आप सोचिए कि उनका मकाम क्या होगा। यहाँ पर तमाम लोग जो रूह परवर मंदिर में, मैं गौतम से कहूँगा उसको देखा है कि रूह परवर मंदिर में जो यहाँ पे हमारे जो सैयदुल कादरी साहब का बयान जारी है, और यहाँ पे लोग बयान सुन रहे हैं। बयान के बाद 1:40 पर नमाज होगी। यहाँ पर हमारे साथ दरगाह का असिस्टेंट नाजिम भी मौजूद है, उनसे राहिल साहब जानते जाएंगे कि किस तरह का खास इंतजाम आप लोगों को कोरोना में करना पड़ा, क्या कितने खदशात थे? बिल्कुल, हमारे सामने आम दिनों में जो तैयारियां हुआ करती थी उसके मुकाबले इस बार कुछ चैलेंजेस ज़्यादा थे कि हम ज़ायरीन को अवेयरनेस के साथ में इस पंडाल तक लाए। आप देख सकते हैं कि दरगाह शरीफ के अंदर आप अभी जुमे की नमाज अदा की गई है, लाखों लोगों ने वहाँ पे उसमें शिरकत की है। अभी हम गरीब नवाज मेहमान खाने विश्राम स्थली की बात करते हैं तो यहाँ 90 बाई 400 स्क्वायर फीट का ये पूरा पंडाल लगाया गया है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन पूरी सहूलत और सुकून के साथ बैठा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि वज़ू खाने की भी जहाँ तक हम बात करते हैं, बाहर जो वज़ू हाउस बने हुए हैं उसमें भी प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में लोग वज़ू कर रहे हैं, पानी को साफ़ किया जा रहा है और हिदायत दी जा रही है कि लोगों को उसको एहतियात से बरता जाए। हमारी कोशिश है कि इस नमाज के अंदर जो माँ बहनें आ रही हैं वो सेपरेट एरिया उनको रखा गया है, वो वहाँ पे नमाज अदा कर सकें और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए। और ख़ास बात ये रहेगी दरगाह शरीफ के अंदर साल भर जो कुरान पाक और दीगर इस्लामी किताबें दी आती है उसको हम आज के दिन उन लोगों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से वो अपने घरों को ले जाते हैं। सवाल यह है कि ख्वाजा की तालीमात पर अमल कैसे हो, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, ख्वाजा साहब की तालीमात पे अमल होना अपने किरदार से आता है। जब तक उसका कोई आइडियल नहीं होगा तब तक वो अमल नहीं कर पाएगा और इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने अंदर किसी किरदार को लेके आए और उस किरदार की अच्छाइयों के अंदर अपने समोए और अपने आप पे अमल करते हुए अपने बच्चों को बताए। चाहे वो एक बात हो कि मुझे सच बोलना है, मुझे बड़ों की इज्जत करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे बावजू रहना है, मुझे अपनी नजरें झुका के रखना है। चाहे एक दिन में एक अमल को पाने के लिए भी बंदा कोशिश करेगा और आज अजमेर के सफर से उसे तोहफा बना के ले जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसकी जिंदगी भर के लिए सफर यादगार रहेगा। सवाल है कि हम लोग जो है इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जानवरों की खुसूसियात जो है इसमें नहीं है। अब इंसान अगर अशरफ है और वो सैयदुल अंबिया का मानने वाला है और सैयदुल अंबिया ने जिसको हिंदुस्तान भेजा है उससे इश्क का ये दावा कर रहा है तो वहाँ पर जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कि आम इंसान है, उनके पास दस्तूर हो या ना हो, सैयदुल अंबिया के मानने वालों के पास दस्तूर हयात मौजूद है, कानून ज़िंदगी मौजूद है, लाहे अमल वो अपने नबी की तालीमात की रोशनी में बिल्कुल तय कर सकता है। ना सिर्फ ये कि जवानी का बल्कि वो क़यामत तक के मनसूबा साजी इंसान साजी के लिए कर सकता है। इंसानियत के फ़रोग़ के लिए मौलिम कायनात हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात वाफर है। ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो तिश्ने कानून है, बल्कि रसूलुल्लाह ने मुकम्मल पूरे शोबे हयात को कानून की फराहमी अता फरमाई है और हमारी ज़िम्मेदारी अजीम तर है कि हम इस वक्त सिसकती हुई इंसानियत को और कराहते हुए इंसानों को, उनकी आहों को, उनके कर्ब को महसूस करें और तालीमात गरीब नवाज को यहाँ से ले जा करके और उसको यहाँ से फैला करके, इसकी तबलीग करके, नश्र इशात करके हम सिसकती हुई इंसानियत की खिदमत अंजाम दें। सिसकती हुई इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम भी लगाना है, उनको उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना भी करना है, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर मदीना से जो ख्वाजा यहाँ पर आए थे उस तालीम से भी आगाह करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं, आशिकाने ख्वाजा आ रहे हैं, वो जब यहाँ से वापस जाएँ तो कौन सा पैगाम लेकर जाए, उनको क्या दर्ज करें। हमने उनको जो दर्स दिया है वो जो दर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि दीन ये खैरखाई का नाम है। खैरखाई जिस इंसान में जिस कद्र होगी उसी कद्र उसका ईमान जो है वो मुस्तहकम होगा, अजीम होगा। अगर इंसान दूसरों के दर्द को महसूस ना करें और उसके मदावे की कोशिश ना करें, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी सोसाइटी का मेंबर नहीं करार दिया, बल्कि फरमाते हैं आका कि जो इस हाल में सुबह करे कि उसके पास मुसलमानों की फलाह का कोई मंसूबा मौजूद ना हो। सुबह को रोज़ाना उससे इस हाल में करनी है कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कोई मंसूबा मौजूद हो। हम ये कहेंगे कि आज से हम ये गरीब नवाज की बारगाह से पैगाम ले जाएं कि हमारी सुबह का आगाज़ मुसलमानों की और इंसानियत की फलाह बहबूद के मंसूबे के साथ हो। हम रोज़ाना ये कोशिश करें कि आज हमारी ज़ात से मखलूक को क्या फ़ायदा पहुँचेगा और इस वक्त के ये सोचें और इसके साथ साथ हम अपना एहतसाब भी करें कि 24 घंटे में हमने जो काम किया कहीं कहीं हमारे किसी अमल से जो है इस्लाम की उस तालीमात को जो है नुकसान तो नहीं पहुंचा, कहीं हमारे अमल से जो है इंसानों को जो है दर्द को उसके दिल को ठोकर तो नहीं लगी। जब हम अपना एहतसाब करने वाले बन जाएंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो तालीमात जो हमारे बुजुर्गों ने दी है, जो ख्वाजा ने दी है, उस पर अमल करने वाली बनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो नुक्ते पर हाईलाइट किया कि ये जब एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी इस कदर अजीम है कि इंसान को अपने मुकम्मल हकाइक से आगाह करती हैं। अपने हकाइक को जाने बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक कि वो अपनी एहतसाब की कैफियत से अपने आप को उन मराइल से ना गुजारें, वो कतन किसी भी काम के काबिल और किसी भी इनकलाब के काबिल नहीं हो सकता। उसके लिए इन मराइल से गुजरना ज़रूरी है। मरहला एहतसाब इतना अजीम है जिसके बगैर चारा कार नहीं है। बिलाशुबा आपने जो कहा ये वाकई काबिल अमल है और काबिल गौर है कि हम अपना एहतसाब ज़रूर करें।
दूसरों को देखते हैं कि दूसरा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हम खुद पर नज़र नहीं डालते कि हमारा जो है अपना फ़र्ज़ क्या है। अच्छा, फिर मैं ये भी देखता हूँ कि हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, कि अपने हुकूक की बात करते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ की बात नहीं करते। जिस दिन हम राइट और ड्यूटीज़ का जो है कि जो बीच में जो एक फ़र्क है उसको ख़त्म कर देंगे, हम अपने फ़राइज़ को अंजाम देने वाले बन जाएंगे, तो हमें अपने हुकूक खुद ब खुद मिल जाएंगे। जी, ये ऐसे ही है जैसे फसल को बोया जाए ताकि उससे हम गल्ला हासिल कर सकें। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की तो बिलाशुबा अल्लाह पाक का वादा जो हक है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसकी वो सही करे। अगर हमने सही को, अपनी कोशिश को सही जहतों पे लगाया और अपनी जानिब के फ़राइज़ को अदा किया तो बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला जो आदिल मुतलक है, अल्लाह अदल करने वाला है, आदिल मुतलक है, हर जिम्मेदारी के अदा करने वाले को वो अल्लाह अपने फजल से उसके हुकूक बहुत अच्छे अंदाज में अता फरमाता है। अगर मखलूक महरूम करना चाहे लेकिन खालिक महरूम नहीं करेगा। फ़राइज़ बंदगी का मिजाज दे के हमें काम सौंपा गया खुदाई का, क्योंकि जो काम अल्लाह को जो है करना है, अल्लाह वो काम बंदों से ले रहा है, और यकीनी तौर पर अल्लाह वो काम अपने बंदों से, उन बंदों से लेता है जिन्हें वो महबूब करता है, जिन्हें वो पसंद फरमाता है। और आप तमाम लोगों को अल्लाह ने इस वक्त यहाँ पे इस मकाम पे फैज किया है कि आप अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएं, तो क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। और तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं, आशिकाने ख्वाजा आते हैं, तो वहाँ पर आपको दर्स भी देना है, ख्वाजा के पैगाम को भी पहुँचाना है, उसमें रसूल को भी पहुँचाना है, कालाम कुरान पाक की तालीमात को भी पहुँचाना है, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। और इन तमाम चीज़ों में जब हम ख्वाजा को देखते हैं तो उनकी सूरत हमें कैसी नजर आती है। जी, जो आपने कहा खुदाए लम यजल का दस्त तू है, जुबा तू है, मगलूब गुमा यक पैदा कर यकी, मगलूब गुमा तू है। इकबाल ने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लम यजल है, लेकिन हम उसके दस्त और उसकी कुदरत के बोलने वाले हैं, उसके तर्जुमा हैं। तो अगर हमने जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि हम ही अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात को नाफिज भी कर सकते हैं और खिदमत खल्क के ज़रिए से, लोगों की चारा साजी के ज़रिए से, लोगों के दर्द के मदावे के ज़रिए से हम पैगाम गरीब नवाज को बहुत अच्छी तरह से पहुँचा सकते हैं। ज़बानें ना आती हो लेकिन हमदर्दी तो आती है। हमें इस हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर अगर बोलने का शऊर नहीं है, खिदमत का तो शऊर है, हमें अपने हुकूक मानने का शऊर नहीं है, लेकिन अपने फ़राइज़ को हकीकी मानों में अदा करने का तो शऊर है। अगर हमने अपने हुकूक अदा किए तो ज़माना ये कहने पर मजबूर होगा अपने फ़राइज़ के अदायगी के बाद कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इंसान कुछ जानता हो, ज़बान ना जानता हो, लेकिन आंसुओं की ज़बान सब समझते हैं। अगर आप आंसुओं की ज़बान को समझने वाले बन जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपका रिश्ता ख्वाजा की तालीम से होगा, क्योंकि वो ख्वाजा गरीब नवाज है। जब गरीब नवाजी की बात होती है तो ख्वाजा के दरबार में वही लोग आते थे जो ज़माने के ठुकराए हुए थे, जिन्हें ज़माने के लोगों ने कबूल करने से मना कर दिया था। उनकी शक्ल सूरत तो इंसानों जैसी थी, लेकिन इंसानों के हुकूक उनको हासिल नहीं थे। ख्वाजा को अमीर नवाज नहीं कहा गया, ख्वाजा को गरीब नवाज कहा गया। तो आंसुओं की ज़बान को कैसे पहुँचाएंगे? जी, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फ़ियाल के। बिलाशुबा अर्क इन्फ़ियाल अपनी तासीर रखता है, उसकी ज़ुबान होती है, उसका मौसिर अंदाज़ होता है। अर्क इन्फ़ियाल जो आंसुओं की कद्र है वो इंतहाई शानदार है, वैल्यू है जो आंसुओं की, उसका किसी तरह से उसको बयान नहीं किया सकता। बिलाशुबा हमें चाहिए कि हम अपनी हमदर्दाना रविश के साथ और इंसानियत दोस्त को काविश के साथ लोगों को गरीब नवाज का पैगाम ज़रूर ब ज़रूर पहुँचाने की सआदत हासिल करें। ये हमारे और सब के लिए मुश्तरका ये जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि इश्तिराक के साथ मुश्तरका हम मिलजुल करके गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की हमदर्दी के और गमे मसावत को और गमे दर्द मोहब्बत को ज़रूर हम इसको पहुँचाने की सआदत हासिल करें। और बिलाशुबा ये बात है कि ज़िक्र नीम शबी और आहे नीम शबी जो है वो अपने असरात रखती है। हमें इंसानियत के लिए कोड़ना भी है, उनके लिए आंसू भी बहाना है और उनके दर्द को महसूस करके मदावे की भरपूर कोशिश करनी है। ये गरीब नवाज के आस्थाने पे सबसे बड़ी खराज होगी और उनकी बारगाह में अजीम तरीन हमारी जानिब से सबसे बड़ी मोहब्बत के नजराने होंगे। यही पैगाम है जो सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए से हम चाहते कि आपके इस अजीम चैनल और इस बड़े ब्रॉडकास्ट से हम ये पहुँचाएँ कि सुन्नी दावत इस्लामी जो 15 साल से यहाँ आ रही है, अभी आपने देखा पानी तकसीम किया गया, लोगों को सफ़े लगवाई गई और खिदमत खल्क का बेहतरीन जज्बा लेकर के हम नौजवानों को लाते हैं। उनके खिदमत से खुदा को तलाश करने की कोशिश है यहाँ पर।
ہاں جی الحمدللہ خدمت کے خلق کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش ہے اور غریب نواز کو راضی کرنے کی کوشش ہے. اگر غریب نواز راضی ہو جائے اور رسول راضی ہو جائے تو لیکن اللہ ہم سے راضی ہوں گا اور ہمارے دنیا و آخرت سنور جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ مہتاب عالم صاحب. اور جیسے کہ خواجہ غریب نواز نے نماز کے بارے میں بھی کہا تھا, آپ جیسے وہاں کے روح پرور مناظر بھی دکھا رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد آپ سے پھر ہم جڑیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرس خواجہ غریب نواز. فی الحال وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہماری یہ خاص پیشکش. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں صدر لیبارٹریز. صدر لیبارٹریز ہندوستان کی مشہور, معروف اور جدید یونانی میڈیسن کمپنیز میں سے ایک ہے, اور آپ تمام ناظرین کو, زائرین کو صدر لیبارٹریز کی طرف سے عرس کی بہت بہت مبارکباد. سیدھے اب رخ کرتے ہیں جے پور کا, جہاں پر ہمارے نمائندے مہتاب عالم موجود ہیں. جی مہتاب عالم صاحب, آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی ہم بتا دیں کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پر تھوڑی دیر بعد جمعے کی نماز ہوگی. آپ روح پرور منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا ذاکر صاحب کا بیان چل رہا ہے. بیان کے بعد جو ہے اذان ہوگی, خطبے کے بعد جمعے کی نماز ہوگی. اور تمام لوگوں کی جو کوشش اسی بات کی ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں, کیونکہ خواجہ جو پیغام لے کر آئے تھے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے. جب ہم اسوہ رسول کی بات کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت المسلمین نہیں, رحمت للعالمین ہے. اور جب رحمت للعالمین ہے, اللہ نے جس کے صدقے و طفیل میں کائنات کو تخلیق کیا ہے, تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کی امت میں شامل ہیں جس کو سید الانبیاء کہا گیا ہے. اور یہاں پر وہ لوگ جو آئے ہیں وہ عاشق خواجہ ہے. عاشق خواجہ کو ہندوستان جانے کا جو فرمان ملا تھا وہ مدینہ منورہ سے ملا تھا, سید الانبیاء سے ملا تھا. تو یہاں پر ہم جب سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں, وہ تعلیمات جو ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا کو جو تعلیمات کی ضرورت ہو یہ ہے کہ خود غرضی کا خاتمہ کیا جائے. خود غرضی ایک ایسی نحوست ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسروں کے درد کو محسوس کرنا بند کر دیتا ہے. خود غرض کسی بھی طرح سے کسی کے بھی مفاد کے حوالے سے کوئی کوشش کر نہیں سکتا. خود پرستی کو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے در سے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ وہ عظیم مرکز ہے جہاں سے ہم خود غرضی کا اور خود پرستی کا اور خود کے مفادات کا خاتمہ کر سکتے ہیں. غریب نواز نے اپنے خلفاء کو مکمل طور پہ یہ تعلیم دی تھی, اپنے محبین کو, اپنے ماننے والوں کو, کہ خود غرضی سے بلند ہو کر کے یہ کوشش کی جائے کہ دوسروں کے مفاد, عوام کے مفاد کے لیے, ان کے غموں کے دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اس لیے کہ اگر ہم نے خود اپنے لیے کام کیا تو یہ تو محض جانوروں کا کام ہوگا. یہ اشرف المخلوقات کے اعلیٰ اقدار سے انحراف ہوگا. اعلیٰ ترین اقدار سے انحراف کرنا اور اپنے مقام بلند سے گر جانا اور خود غرضی کا مظاہرہ کرنا, یہ بلا شبہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا. انسان اتنا عظیم ہے جسے قرآن کریم سے اگر پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا. ہم نے انسانوں کو اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ اکبر, اسے ہم نے خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب دیا ہے. وہ خلیفۃ اللہ ہے, وہ تاج کرامت کا مستحق ہے, وہ احسن تقویم کا شاہکار ہے. اگر ہم نے ان تمام اقدار کو, ان تمام عروج کو, ان تمام بلندیوں کو فراموش کر دیا تو پھر ہم میں اور دوسرے مخلوقات میں تمیز باقی نہیں رہے گی. اس لیے کہ قرآن نے مخلوق میں تمیز جو ہے فرق باقی نہیں رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہے اس اسوے کو کیسے پکڑے, ہم اس تعلیم کو کیسے پکڑے کہ ہم اگر اشرف المخلوقات ہے تو اشرف کہلانے کے لائق بنے. کیونکہ دنیا میں جو حالات ہے, جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دینا ہو رہا ہے, تو یہ اشرف المخلوقات اگر ایسے کرا تو انسانیت بھی تو شرمسار ہو رہی ہے. جی بالکل, جب اشرف المخلوقات اپنے
آپ کو اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے نکال لیتی ہیں تو انسانیت شرمسار ہوگی، انسانیت کی آبرو ریزی ہوگی، انسانیت کی ایک اندازے سے عصمت دری ہوگی. اس لیے کہ انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا گیا، اور اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو جاننا، دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا. جی، انسان آنے کا مقصد فراموش کر گیا. قرآن کریم نے اس بات کا بہت 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 تذکرہ کیا. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم کو عبث پیدا کیا گیا، وہ بس یوں ہی پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، بلکہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر ہم نے تعلیم حاصل کی ہوتی اور قرآن کو سمجھا ہوتا تو قرآن پاک کے نور سے بلا شبہ ہم کامیاب ہوئے ہوتے. جب تک نہ ہو تیری ذات پہ نزول قرآن، جب تک نہ ہو تیری ذات پہ نزول قرآن، کتاب تو کتاب خواہ ہے، صاحب کتاب نہیں. ہمیں صاحب کتاب بننے کے لیے اپنی ذات پہ نزول قرآن کی تمام تر کیفیات کو محسوس کرنا ہوگا. جب ہم نزول قرآن کی کیفیات کو اپنے آپ پہ محسوس کریں گے اور اسے کتاب صرف محض برکت کی کتاب نہ سمجھتے ہوئے عمل کی کتاب سمجھیں گے تو پھر بلا شبہ وہ کا ذکر کیا. اللہ چاہتا تو قرآن کو جو ہے پہاڑوں پہ نازل کر سکتا تھا، پانی پہ نازل کر سکتا تھا، لیکن سب نے منع کر دیا. اور لوگوں کو امید نہیں تھی کہ انسان جیسی معمولی چیز اس کے سینے پر وہ تمام چیزیں جو پہاڑ جو پتھر کا ہوتا ہے بڑا سخت گیر ہوتا ہے، ان سب نے منع کر دیا. لیکن انسان نے اسے قبول کر لیا. انسان نے قبول کر لیا تو انسان کا مرتبہ اور بڑھ گیا. اب انسان کا مرتبہ بڑھ گیا تو اس مرتبے کی بلندی کا خیال رکھنا، اس مرتبے کو بلندی کو قائم رکھنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. جی، اپنی ذمہ داری کا پاس رکھنا، اپنی ذمہ داری کا لحاظ رکھنا. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا پاس نہ رکھا تو بلا شبہ یہ ناانصافی ہوگی، اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی. بلا شبہ اللہ نے جو عظمتیں عطا کی ہیں انسان کو، وہ عظمتوں کو وہ کم متحمل بنایا گیا ہے. ان تمام کے حاملین کی حیثیت سے ہمیں کام کے حوالے سے اس عظمت کو پہچاننا بھی ہے، اور وہ پہچان علم کے ذریعے ہوگی. پہچان علم کے ذریعہ ہوگی، اور یقینی طور پر جب علم ہوگا تو دنیا کی تمام چیزوں کا مقصد معلوم ہوگا. انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہوگا، انسان دنیا میں کیوں آیا ہے یہ بھی معلوم ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے یہ بھی معلوم ہوگا. اور جب تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ بزرگان دین کی مجلسوں میں بیٹھیے، آپ درس قرآن میں بیٹھیے. جب آپ درس قرآن کو حاصل کریں گے تو سارے مقصد معلوم ہوں گے. بے شک، کیونکہ علم کی فضیلت بڑی افضل ہے، اور قرآن مقدس کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علم کے حوالے سے ہی نازل ہوئی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اس لیے پڑھنے کی اہمیت کو پہلے ترجیح دی گئی ہے. اس لیے انسان جب تک کہ پڑھتا نہیں، جب تک کہ وہ علم نہیں حاصل کرے گا وہ مکمل صلاحیت والا انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے علم کا سیکھنا اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے. جاننا بہت ضروری ہے. سب باتیں تبھی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن سوال ہے کہ علم کا حصول جو ہے، علم کو آسان کیسے بنایا جائے، کیونکہ موجودہ زمانے میں علم کا حصول بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور غریب علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. خواجہ کے آستانے میں تو ہر کوئی آ کے علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن آج کل کا جو درسی نظام ہے وہاں پہ مشکل سے مشکل ہو رہا ہے. ایسے میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اس سے ہماری ذمہ داریاں یہ بنتی ہے کہ جن حضرات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرمایہ سے نوازا ہے، ان کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ وہ علم کی یونیورسٹی درسگاہ قائم کرے، جس میں غریب طبقہ پڑھ سکے اور علم دین حاصل کر سکے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور علم کے ذریعے سے، علم دین سکھانے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں آخرت میں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. یہ جو ہمارے جو بڑا طبقہ جو آج کل جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس میں سرمایہ سے نوازا، دولت سے نوازا، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علم. بہت اچھی بات کی کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن علم کا ہونا اور عمل کا ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ویژن نہیں ہے، کسی کے پاس ویژن ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے. دونوں کے جو ہے ایک جگہ پر کس طرح سے جو ہے یکجا کیا جائے کہ پیسے کا صحیح استعمال بھی ہو جائے، علم کی جو ترسیل ہے وہ آسان ہو جائے. اس کے لیے لازمی طور پہ یہ ہے کہ جو اسلامک اسکالرس ہیں وہ سرمایہ داروں کی ذہن سازی کریں اور ان کو اس طرف آمادہ کریں کہ اپنی دولت کو جو اللہ کی نعمت ہے اسے تعلیم پر خرچ کریں. اس لیے کہ اللہ نے ہمارا مقصد حیات بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن صوفیہ کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں الا لیعرفون، کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا.
جب تک کہ سرمایہ دار اپنے دولت کے اصل مصرف کو نہیں پہچانے گا اور جب تک کہ اہل علم ان کی ذہن سازی نہیں کریں گے اور یہ ایک مشترکہ طور پہ مل جل کر کے کوشش نہیں کی جائیں گی تب تک کہ یہ جو خلا ہے اسے پورا نہیں کیا جا سکے گا. آپ نے معرفت کی بات کی. اب سوال ہے کہ شریعت, طریقت اور معرفت, ایک عام انسان تینوں چیزوں کو نہیں جانتا ہے. شریعت میں پہنچنا آسان نہیں ہے, پھر طریقت اور معرفت, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے بزرگان دین کی صحبت اختیار کیجئے, ان کے درس میں بیٹھیے. جی بالکل, ان کی قرآن پاک کی تعلیمات جہاں اس کے قیام کا باضابطہ طور پہ قیام کیا جائے کہ تعلیم قرآن عام ہو, دروس قرآن عام ہو, قرآن پاک کی تفاسیر بیان کی جائے, بہت سستے لٹریچر کے ذریعے سے عوامی تحریک چلائی جائے. یاد رکھیے گا اس میں سب کی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ سجادگان جو بڑی جس طرح راحل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن اور علم کی فضیلت پہ جو ہے علماء دین بیان کر رہے تھے اور جو ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے بس نماز جو ہے شروع ہونے والی ہے, تو ہم بھی چاہیں گے کہ جو ہے یہاں پہ جو اوپر منظر ہے اس کو آپ ڈائریکٹ دکھا سکتے ہیں. جی بالکل مہتاب عالم, اور جیسے آپ نے اشرف المخلوقات کی بات کہی تو انسان بے شک اشرف مخلوقات ہے, اور خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کر لے, کیونکہ توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے خدا کے جو بندے ہیں, نیک بندے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرے, حسن سلوک کرے, یتیموں پر جو ہے آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور خیرات کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ مہتاب عالم ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہم بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس خواجہ غریب نواز. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے عرس خواجہ غریب نواز. اس پروگرام کو پیش